آصف زرداری صاحب وہاں جلسہ کرنا چاہیں گے تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اگر وہ آنا چاہیں تو میں اپنے آبائی گھر ان کو چائے بھی بلا سکتا ہوں. میں یہ بھی ان کو اشور کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ الیکشن میں ان کے امیدوار کا اس علاقے سے ضمانت ضبط ہو. چودھری نثار کا حلقہ یا سیاسی اکھاڑا؟ آصف زرداری کو چائے کی آفر لیکن امیدوار کی ضمانت ضبط ہونے کی وارننگ. کہتے ہیں شرجیل میمن کرپشن پر شور نہ مچائیں، جواب دیں، مقدمات پر مناظرہ کر لیں. شرجیل میمن کا وزیر داخلہ کو چیلنج. پارٹی کے سربراہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم کس طرح کام کرتے ہیں. پہلے کراچی کا کوڑا کرکٹ صاف کروا لیں، اس کے بعد دوسری بات کریں. شہباز شریف کا ایک بار پھر آصف زرداری کو جواب. پیپلز پارٹی، قاف لیگ اور پرویز مشرف اندھیروں کے ذمہ دار قرار. کہتے ہیں الیکشن میں تمام جماعتوں کا صفایا کر دیں گے. عمران خان کو بھی مفید مشورہ. جناب نیازی صاحب، آپ تو اس کو جنگلہ بس کہتے رہے، میں جنگلہ بس نہیں کہوں گا. پشاور کی جنگلہ بس کے بجائے اس کا نام چھانگلہ گلی بس رکھتے ہیں. آصف علی زرداری نے پنجاب میں سیاسی بساط بچھانے کی تیاری کر لی. چودھری برادران کو مل کر الیکشن لڑنے کی آفر. گیس سپلائی پروجیکٹس پر پابندی ہے تو پنجاب میں 97 منصوبے کیسے شروع ہو گئے؟ چٹھی میں مراد علی شاہ کا سندھ کو نظر انداز کرنے کا شکوہ. وفاقی حکومت فیڈریشن کو کمزور کرنے سے باز رہے. بلاول بھٹو کی بھی وارننگ. آپریشن رد الفساد ملک میں دیر پا امن لائے گا. سپہ سالار کا عزم. باولپور گیرزن میں سیکیورٹی آپریشنز پر بریفنگ. آرمی چیف کی راولپنڈی میں شہید میجر مدثر کے اہل خانہ سے ملاقات. کہتے ہیں بہادر ماں باپ کی موجودگی میں کوئی دشمن مادر وطن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. فوجی عدالتوں کی مدت میں 2 سال کی توسیع. سینٹ میں بھی 28ویں آئینی ترمیم منظور. ریاست کے خلاف سنگین اقدامات. مذہب اور فرقے کے نام پر دہشت گردی. مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں گے. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل صادق علی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. مردم شماری کی پیش رفت کا جائزہ لیا. عوام کے تعاون کی تعریف. گستاخانہ مواد کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. فیس بک انتظامیہ نے 62 پیجز بلاک کر دیے. عرب لیگ اور OIC کو بھی خطوط لکھ دیے. وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کو پولیس کی بروقت کارروائی. لاہور بڑی تقریب کاری سے بچ گیا. شاہدرہ میں غیر ملکی ساختہ اسلحے سے بھری گاڑی پکڑی گئی. ملزم گرفتار. کہاں صاف کر رہے ہیں میرے کو سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے علاقے کو چھوڑ کے کیا سب کو صاف کر رہے ہیں؟ ہمیں ویسے ہی مارنا ہے تو ہمیں ویسے ہی آ کر مار دیں. اسکول جاتے تو بیگ بستہ گر جاتا ہے، پھر نہ مشکل ہو جاتی. کراچی کی شہری انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ. کورنگی سمیت کئی علاقوں کا کچرا اٹھا کر منیر اور کھوکھرا پار پھینک دیا گیا. بیماریاں پھیلنے کا خدشہ. 1,93,000 کنال اراضی کے جعلی عدالتی فیصلوں کا اسکینڈل. متاثرین نے تحقیقاتی کمیشن کو تحریری ثبوت دے دیے. ملزم چودھری ارشد 3 اپریل کو طلب. نیب میں خلاف ضابطہ تقرریوں کا از خود نوٹس کیس. سپریم کورٹ نے 4 افسروں کی ریٹائرمنٹ اور 2 کی اصل محکموں میں واپسی کا حکم دے دیا. 4 کے مستقبل کا فیصلہ کل ہوگا. سپیریئر اسپیشل الاؤنس کے نام پر بھاری رقم. وزیر اعلیٰ سندھ نے 2 دوستوں پر خزانے کے منہ کھول دیے. چیف سیکرٹری کو 4 لاکھ اور IG کو 4.25 لاکھ ہر ماہ اضافی ملیں گے. بیوٹی پارلر ہوگا جو نند کمار صاحب کی ریکوائرمنٹ ہے. آدھے بال وائٹ ہو گئے، آدھے کالے ہیں تو ان کو کالے کریں گے. آپ منی ہے کیا؟ میں سمجھا آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں ایز اے منی. ارکان سندھ اسمبلی کے لیے ہاسٹل کا اعلان. ایوان میں تفریح طبع کا بہانہ بن گیا. کہیں جم اور بیوٹی پارلر کی آواز. شکارپور کے اچار کا بھی چرچا. سندھ کے ہر ضلع میں ٹراما سینٹر بنانے کی قرارداد مسترد.
के इम्तिहानात, हर तरफ नकल का राज, मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल, कराची के मुतादिद सेंटर्स पर बिजली गायब, मुंतखब नुमाइंदे अमली इक़दामात की बजाय मशवरों तक महदूद। अगर अभी से हमने अपने बच्चों को इस चीज़ से नहीं बचाया तो आगे चल के तबाह हो जाएगी हमारी ये सारी नस्ल। ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि एक आदमी मेरिट पे आ रहा है और एक नकल करके आ रहा है तो फिर क्या फ़र्क हुआ। वज़ीर आला थोड़े से इंतज़ाम की तरफ भी देख लें और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग भी कर लें। इस्लामाबाद में अपने ही बाप के हाथों बेटी कत्ल, संगदिल बाप ने गला दबाकर उरूज को मौत की नींद सुला दिया, खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वालिदा ने बंगाली से शादी कर ली, सौतेले बाप के तशद्दुद के बायस घर छोड़ दिया, सगे वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान से था, भारतीय जेल में कैद बच्चे बाबुल का दावा, वजारत खारजा को रिश्तेदारों की तलाश। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने जुल्म की हर हद पार कर ली, मुजाहिरीन पर फायरिंग खोल दी, 4 कश्मीरी शहीद, मुतादिद जख्मी, काबिज फोर्सेस ने लाशें भी न उठाने दी। भाई मेरा शहीद हो गया है, आप देख सकते हैं कि कश्मीर में कितना जुल्म कर रहा है, गाड़ी में डेड बॉडी है, आप देख सकते हैं, ये रहा, देखिए डेड बॉडी हमें जाने नहीं देते हैं, देखिए आप सामने देखिए कितनी लड़ाई हो रही है, हम आज़ादी चाहते हैं। खुद सर भारत अपनी फौज को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम, सरहद पर तैनात भारतीय फौजी दिमागी खपत और दीगर बीमारियों के बायस मरने लगे, डायरेक्टर जनरल BSF का एतराफ। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू फिरके के घिनौने कामों से पर्दा उठाना अमरीकी सहाफी को महंगा पड़ गया, डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर करने पर माफी मांगने का मुतालबा। इटली का आतिशफशां फिर बिफर गया, 2 किलोमीटर तवील लावे की सुर्ख लाइन, हैरत अंगेज नजारा देखकर सब हैरान। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा। दौड़ लगाई तो जान पर बनाई, 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर फासला पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए पहाड़ बन गया। बाहर आई तो शहर बेमिसाल का हुस्न हो गया बेमिसाल, हर तरफ खिले हैं रंग हजार, फूल ही नहीं चांद चेहरे भी खिल उठे। के मैदान में चाय की गर्दान है, इलेक्शन की बसात बिछ गई है, चौधरी निसार ने आसिफ जरदारी को आबाई घर में चाय की दावत दे दी। वो कहते हैं चक्री में जलसा करने पर सहूलत और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन साथ ही पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त भी करवा देंगे। चौधरी निसार ने चक्री में आसिफ जरदारी को खुशामदेद कह दिया, कहा जरदारी साहब से शदीद इख्तलाफ राय है लेकिन जाती दुश्मनी नहीं, आसिफ जरदारी को चक्री में अपने घर पर चाय भी पिलाऊंगा। वजीर दाखिला ने साथ ही ईडी के उम्मीदवार की चक्री से जमानत जब्त होने की यकीन दहानी भी करा दी। आसिफ जरदारी साहब वहाँ जलसा करना चाहेंगे तो मैं उनको भी खुशामदेद कहता हूँ, उनको हर तरीके से फैसिलिटेशन हम करेंगे, उनकी सिक्योरिटी का हम बंदोबस्त करेंगे, ये मैं अश्योर करता हूँ। अगर वो आना चाहें तो मैं अपने आबाई घर उनको चाय भी बुला सकता हूँ। मैं ये भी उनको अश्योर करता हूँ कि आइंदा इंशाल्लाह इलेक्शन में उनके उम्मीदवार का इस इलाके से जमानत जब्त हो। बोले शजील मेमन का नाम कानून के मुताबिक ECL में डाला, पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्रेडिट लेने के लिए खिलाफ बात करते हैं। हाँ, ECL मैंने डाला, कानून के मुताबिक डाला, उसके केस से मेरा तल्लक नहीं है। जो उठता है पीपल्स पार्टी को बड़ी क्रेडिट मिलती है मेरे खिलाफ बयान देने में। ECL में नाम डाले जाने पर शजील मेमन ने चौधरी निसार को मनाजरे का चैलेंज कर दिया। कहते हैं चौधरी निसार नवाज शरीफ की नौकरी करते हैं, वो वफाकी वजीर ही रहें, जज न बने। चौधरी निसार की बातों का जवाब दिया है कमर जमान कायरा ने। कहते हैं चौधरी निसार चक्री में अपनी जमानत की फिक्र करें, चक्री से तो वजीर दाखिला खुद इलेक्शन हारे हुए हैं। कमर जमान कायरा का यह भी कहना था कि चौधरी निसार कभी ख्वाजा आसिफ को भी चाय पर बुला लें।
जरदारी साहब तो अपनी जमानत की फिक्र करें, उनकी चक्री में तो वो खुद हारे हुए हैं, पहले भी हारे थे। उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को तो दावत दे ही दी है, ख्वाजा आसिफ को भी दावत दे दें तो ताकि अच्छा लगेगा, मतलब है, और उनको भी चाय पिलाएं। इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम ही है, जब तक अदालत से कोई उसकी कन्विक्शन ना हो जाए, वो अदालत में तो फेस कर रहे हैं। महज इल्ज़ाम की बुनियाद पे तो बातें नहीं बनती, क्योंकि महज इल्ज़ाम की बुनियाद पे हो तो मियाँ साहबान का तो सारा खानदान सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मुलज़िम खड़ा हुआ है। कायरा साहब ने दुखती रग पर हाथ रखा तो वज़ीर आला पंजाब भी मुखालिफिन की खूब खबर ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पहले कराची का कचरा साफ करने और फिर पंजाब आने की नसीहत की। पेशावर में मेट्रो मंसूबा बनाने पर तहरीक इंसाफ पर भी तंज के निश्तर चला दिए। पंजाब भी आपका घर है, दिन रात यहाँ पर आए, मगर पहले कराची का कूड़ा करकट साफ करवा दें, उसके बाद दूसरी बात करें। अब पेशावर में 4 साल बाद उनको ख्याल आया कि ये तो मारे गए, अब इसको शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा कि जनाब न्याजी साहब, आप तो उसको जंगला बस कहते रहे, मैं जंगला बस नहीं कहूँगा पेशावर। मालूम नहीं आइंदा किसकी बारी है। फिलहाल जिक्र जरदारी है जो कहते हैं कि कुछ दिन इंतजार फिर होगी यलगार। पनामा केस के बाद पंजाब में सियासी पत्ते शो करेंगे। साबिक सदर कहते हैं कि पनामा केस के बाद पंजाब में सियासी पत्ते शो करेंगे और आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ को इंतखाबी इत्तेहाद की भी पेशकश कर दी। साबिक सदर का कहना है कि मैदान सजेगा तो मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तौसी हो गई है। सेनेट में भी 28वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई है। 78 अरकान ने इसके हक में वोट दिया, जबकि 3 सेनेटर्स ने मुखालिफत की। सदर की मंजूरी के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। सियासत के बाद रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के बाद आर्मी चीफ ये कहते हैं कि पाक फौज किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने मुसल्लह फौज को बेहतरीन बना दिया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क में देर पा अमन लाएगा, ऐसा कहना है जनरल कमर जावेद बाजवा का। और अब वो मामला जिस पर हर कोई जान निसार करने के लिए हर वक्त तैयार है। गुस्साखाना मवाद का मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये कहना है वजीर दाखिला चौधरी निसार का। उन्होंने कहा कि चंद दिन में 45 वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अब वीजों का इजरा पोशीदा नहीं होगा, हर चीज का रिकॉर्ड होगा। ये भी कहा वजीर दाखिला ने कि सफारतकारों की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी और उन्हें 1 साल का वीजा मिलेगा। पिछले 2-3 दिनों में हमने 45 साइट्स ब्लॉक की हैं। इंशाल्लाह इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई शख्स पाकिस्तान के वीजा के लिए अप्लाई भी करे तो उसका नाम, उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड पे होगी। इमिग्रेशन सर्विस डिपार्टमेंट को FIA से अलग किया जाए। जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स हैं उनको भी इनिशियल 1 साल का वीजा तो मिल जाता है, उसके बाद उनकी बाकायदा सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। और अब बात शेखुपुरा में पेश आए खौफनाक ट्रेन हादसे की, जिसमें 21 घंटे बाद भी जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। मुकदमे में भी किसी को नामजद नहीं किया गया। ट्रेन ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर लाहौर में सुपुर्दे खाक कर दिए गए हैं। शेखुपुरा में ऑयल टैंकर से तसादुम के बाद आग की लपेट में आने वाली शालीमार एक्सप्रेस के ड्राइवर मोहम्मद लतीफ और असिस्टेंट ड्राइवर अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई, जिसमें रेलवे अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा के बाद दोनों को गढ़ी शाहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस पीर और मंगल की दरमियानी शब शेखुपुरा के करीब हरन मीनार फाटक पर ऑयल टैंकर से टकरा गई थी, जिसके बाद ट्रेन के इंजन और कई बोगियों में आग भड़क उठी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसाफिरों ने छलांगे लगाकर अपनी जानें बचाई। इमदादी टीमें भी ताखीर से पहुंची। और पुलिस में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, और वो ये कि पंजाब पुलिस के 121 अफसरान की तनाजुली का हुक्म बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि छलांग लगाकर आगे आने वालों को पीछे जाना होगा। ये है पुलिस में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का मामला। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात हो रहे हैं और हर तरफ नकल का राज है। हर बच्चा मुन्ना भाई बना हुआ है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है। सक्कर में अंग्रेजी का पेपर भी आउट हो गया। नकल रोकने के लिए बोर्ड हुकाम के इंतजामात धरे के धरे रह गए।
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ।